सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड्स रेगुलेटरी बॉडीज। आप सबको पता होगा दैट आरबीआई ग्रेड बी 2023 ऑफिशियली उसकी साइकिल खत्म हो चुकी है। नाउ वी ऑल स्टार्ट अ न्यू जर्नी फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024। Now, there is very important thing that we should analyze and understand, and that is as recently cutoffs have been declared for RBI Grade B Phase 2 examination of 2023. So Phase 1 cutoffs भी है हमारे पास Phase 2 cutoffs भी है। Therefore, we can analyze कि overall in last recent 2-3 जो साल है उनमें changes क्या हुए हैं RBI Grade B एग्जाम में, ठीक है। So let's today discuss and analyze the trend analysis which is based on the cutoffs for all the previous years of RBI grade B for phase 1 also and for phase 2 also. So for all the students who have cleared RBI grade B 2023, of course we also, all you board has got 146 selections and we are still counting. Okay, so with that we will today discuss this particular topic today for all the new aspirants or all the students who are aiming their dream RBI grade B officer job, that is for the year of 2024. अब जब बात करते हैं, इफ यू सी द कट ऑफ एनालिसिस फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, तो फेज 1 में आपको पता ही होगा 2017, 18, 19, 2021, 2022 एंड 2023 ये रहे सारे टोटल सेक्शनल कट ऑफ्स भी हर एक सेक्शन के लिए, और ये ओवरऑल कट ऑफ भी आपके पास है। So when I talk about the sectional cutoffs and overall cutoffs, यहाँ पर जनरल थिंग विच मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी आई विल टेल यू सम ऑफ द डिस्कशन। इट इज अबाउट कि कैसे आपके सिलेक्शन में जीए इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्यों, स्कोर करने के लिए और ओवरऑल कट ऑफ ये जो है इसको क्लियर करने के लिए। जब जहां तक कि क्वांट और रीजनिंग की बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांट एंड रीजनिंग, सो क्वांट एंड रीजनिंग यूर main aim should be to just clear the sectional cutoffs or of quant and reasoning respectively. Rest GA and English should be your scoring targets. If you see the cutoff from 2017, you could see that now it is 54.25 out of 200, which is almost 25%. And if you compare this cutoff with any other prime exam like UPSC, even UPSC का भी जो cutoff होता है that is more than 35%, 40%. So here you will understand that yes, phase 1 exam is the first stage which I call particularly the eliminating stage. मेजर कैंडिडेट्स फेज 1 में इलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि एक तो वो किसी भी सेक्शनल का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं या फिर वो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। So try to understand very clearly, this is the elimination stage. Only 25% is the cutoff. It shows that phase 1 is difficult, lengthy, and most importantly, all the questions which are asked, it may be QRE or it may be even GA, every section would be difficult and a task to conquer. Okay, let's move to, this is all about phase 1 cutoff analysis. Look at it, 2017 it was 78, 105, then 2019 122. So wherever the cutoff is really very very high, that is overall cutoff is high, you can understand कि उस साल वो एग्जाम शायद से इजी आया होगा, क्योंकि डिफिकल्ट जब एग्जाम होता है हमारा कट ऑफ नीचे गिर जाता है, ये हमें सबको पता है, वेरी इजी लॉजिक। सो हियर यू कुड सी द रीसेंट 3 इयर्स, 2021 में 66 था, 2022 में 63.75 था, एंड 2023 में आप देखोगे तो पूरा ही ड्रॉप हो चुका है, इवन दिस मच ड्रॉप, 10 मार्क्स का ड्रॉप हुआ है आपके कट ऑफ में। ये दिस थिंग ऑल्सो सिग्निफाइज दैट for most of the students whatever the selection of the question is there, that also may be कि वो ठीक से नहीं कर रहे, it means that students की accuracy यहाँ पर they are getting affected, that means क्या, उनकी accuracy ज़्यादा ठीक नहीं है, it is beyond your either 80% और 90%, जिसकी वजह से शायद उनके बहुत सारे questions गलत हो रहे, ठीक है, और इसी वजह से overall cut off भी उनका नीचे आ रहा है। So as earlier years you could see of phase 1, 2019 कहिए, 2018 कहिए, even 2022 या 2021 कहिए, their students were able to score in GA and English also, but now this pattern also has changed. आप GA और English में इतने ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, and that is why your overall cut off again is reducing, ठीक है। ये था पूरा phase 1 का cut off analysis। अब phase 2 की बात करते हैं। जब हम phase 2 की बात करते हैं, try to understand, here I have given all again
2017, 2018, 2019, 2021, 2022 एंड 2023। ये तो हमारा फेज 1 का ओवरऑल कट ऑफ है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फेज 2 कट ऑफ ओनली रिटर्न मार्क्स, सी इन 2017 it was 196.75, in 2018 it was 201.25, in 2019 it was 193.25, in 2021 it was 187, 171, and now it has dropped again here in 2023 to 169. Okay, so when we talk about phase 2, if I compare it with the year of 2022, just 1-2-3 marks difference is there. So here you could see this is your overall cutoff, that means phase 1 प्लस जब आप इंटरव्यू के मार्क्स करोगे ये आपका ओवरऑल कट ऑफ आएगा। इज इट करेक्ट? इंटरव्यू में आपके होते हैं मार्क्स ओनली 75 एंड ऑन एन एवरेज किसी भी स्टूडेंट को 40-45 प्लस मार्क्स मिलने ही चाहिए, राइट? दिस इज अ डिसेंट स्कोर, 40 प्लस 45 प्लस मार्क्स, राइट? अभी तो स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि 50 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत स्कोरिंग होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फेज 2 में अगर आप मार्क्स देखते हो, सी हियर in earlier years phase 2 was very scoring, 200, 196, 193, but at that time descriptive was not there. जैसे ही descriptive part add हुआ, that is descriptive answer writing in English also, in ESI and finance and management also, automatically आपका जो overall cut off था वो कम हो गया। तो आपको एक बात समझनी होगी कि कट ऑफ्स अगर आप देखते हो 2021 में 187, फिर 10 मार्क्स का ड्रॉप ऑलमोस्ट 171.25 एंड देन 2-3 मार्क्स का ड्रॉप 169। ये हमारा जो ओवरऑल फेज 2 का कट ऑफ है आउट ऑफ 300 है 169, 170 कंसिडर कर लो, ये 170 एंड अगर आप टोटल फाइनल जो कट ऑफ है जहां पर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हो वो हमारा कट ऑफ है 229। प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो थोड़ी सी सिमिलरिटी है, 2-4-5 मार्क का डिफरेंस है, ठीक है? बट व्हाट इज वेरी कॉमन इन दिस 2 years इज दैट कि एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे दैट हाउ इंटरव्यू प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन योर सिलेक्शन। कंसिडर आपको 170 मार्क्स मिले हैं या फिर देखो कट ऑफ ही 170 है, तो एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 300 किसी भी स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट भी कंसिडर करे जो कि बस थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है, फेज 1 उसने क्लियर किया और फेज 2 दिया है, तो उसे 170 नहीं मिलेंगे, 169 तो कट ऑफ है, राइट? तो उसको एटलीस्ट मैं कहूंगा 180 तो मिल ही जाएंगे, राइट? 180 190 तो मिल ही जाएंगे। सो रिमेनिंग अगर आप मार्क्स 229 ओवरऑल कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है तो आपको बस इंटरव्यू में 50 मार्क्स लाने एंड दैट इज डूएबल। तो इससे हमें यह पता लगता है, लुक एट द ऑल द कट ऑफ्स, दीज आर ऑल योर कट ऑफ्स, सो कट ऑफ्स आर अगेन रिड्यूसिंग। दिस ऑल्सो शोज दैट फेज 2 में एमसीक्यूज वट एवर कम, राइट, द ऑब्जेक्टिव पार्ट दैट इट्स टर्निंग आउट टू बी डिफिकल्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट विच कम्स, we will not talk about how difficult or moderate it is, but most importantly it is subjective in nature। कभी कभार एक ही क्वेश्चन का स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन जो होता है, एक स्टूडेंट अच्छा आंसर लिखेगा, एक स्टूडेंट बुरा नहीं बट ओके, जस्ट एक ओके आंसर लिखेगा। द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इज दैट नो आंसर इज बैड, ओनली द डिफरेंस इज आंसर इज अ बेटर एंड आंसर इज गुड। जिसको बेटर मिले उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसको गुड मिला है उसको बस मीडियम मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कट ऑफ्स नाउ। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो इट इज रेंजिंग फ्रॉम 245 ऑलमोस्ट, या फिर 250 भी कह सकते हो आप। 2021 में देखो 250 तक चला गया था, इसका मतलब फेज 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्यादा स्कोर किया था। अब है वो 229 तक। तो इससे हमें यह पता लगता है, सी द डिफरेंस बिटवीन योर फेज 2 मार्क्स एंड योर इंटरव्यू मार्क्स। आप इससे एक डिफरेंस निकाल पाओगे। फ्रॉम 170 टू 230 अगर आपको पहुंचना है तो आपको यह पता लग जाएगा। लेट्स ट्राई टू analyze or maybe conclude based on all the phase 1, phase 2 and interview marks of all the previous years, so that we will understand what is the selection criteria। आप अगर RBI grade B officer होना चाहते हो in the year of 2024, then what is your selection criteria? So based on the cutoff, your selection criteria for the year of 2024 should be this। phase 1 में your key section would be general awareness। So daily doing PIB news, daily reading the newspapers, daily doing static current affairs, banking and finance current affairs. This is where you would be differentiating with your competitors. Remember this, GA में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते हो, out of 80, if you don't get over 25 or 30 marks, it will become very difficult to clear overall cutoff। याद रखना ये बात। Second, score maximum in English। इंग्लिश में 20 से 25 के ऊपर मार्क्स लाने ही लाने हैं, प्री रिक्विजिट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी। एंड
इन क्यूआरई फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वीक। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्यूआरई में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बट आई एम टॉकिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वीक। अगर आप वीक हो, आपका एम होना चाहिए टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ। जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उससे आप टारगेट मार्क्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वांट में 6 to 8 मार्क्स, रीजनिंग में ऑफ कोर्स आपका 15 to 16 मार्क्स। ऐसे आप अगर कट ऑफ क्लियर करोगे तो आराम से आपके बाकी के जीए और इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो और फेज 1 क्लियर करके आराम से फेज 2 एग्जाम दे सकते हो। एम आई राइट? When you move to phase 2, there is also a second thing to always remember. Whenever you start your preparation for RBI Grade B exam, never see, phase 1 is an eliminating stage, but you should never dedicate more period or more time of yours on day-to-day basis to phase 1. You should follow rather a integrated approach. मतलब phase 1 difficult है, eliminating stage है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर माथा फोड़े हम, ठीक है? The real game, the real selection is in phase 2. इसीलिए फेज 2 का प्रिपरेशन फेज 1 के साथ इंटीग्रेटेडली करना ही होगा। सेकंड, स्कोर मिनिमम, जब फेज 2 की बात आती है, स्कोर मिनिमम 55 प्लस इन इंग्लिश। इंग्लिश इज फॉर 100 मार्क्स। आपको इंग्लिश में मिनिमम 55 मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे, कोई पॉइंट नहीं है अगर आप 55 मार्क्स नहीं ला रहे हो तो यू आर ऑलरेडी इलिमिनेटेड। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सेकंड, मैक्सिमाइज योर एमसीक्यू मार्क्स विच in ESI 50 marks MCQs are there. In finance and management both 50 marks MCQs are there. In both 50 marks you should get 35 plus marks. Now why I am saying this? Because in MCQs you are having options. In MCQs you will be knowing what questions I know, what questions I don't know, and if you mark a multiple choice question correct, you will 100% get out of marks. अगर 2 मार्क्स का एक MCQ है और अगर आप उसमें करेक्ट आंसर लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई आपको 1.5 मार्क नहीं देगा, कोई नहीं देगा आपको, कोई आपको 1 मार्क नहीं देगा। एवरीबडी विल गिव यू 2 मार्क्स। बट विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट इट इज व्हाट? इट इज टोटली सब्जेक्टिव इन नेचर। सपोज 15 मार्कर क्वेश्चन इज देयर एंड यू राइट अ रियली ऑसम आंसर, you think it's a awesome answer but you get only 6 marks. So imagine this, it is very subjective. As I told you, it is the only difference, either answer is a better or is it good. So descriptive answer, complete, the only thing which you can do in descriptive answer writing, you can either practice answer writing, and second thing is complete the answer within time and within the word limit. For every phase 2 exam, whenever an RBI aspirant is going, he should think that I will never miss a question. मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के नहीं आऊंगा, I will complete my paper. So this is the strategy for phase 2, and phase 2 is the main pillar of your selection. कभी भी याद रखना, if you want to clear RBI grade B exam, the main subjects are not phase 1 subjects but rather phase 2. This is the main pillar. When we talk about final selection, earlier it was कि interview had only 50 marks. Then interview became for 75 marks. Now in recent 3 years, what we have seen is that interview plays major role in your selection. Look at it. In the recent year of 2023, what was the cutoff for phase 2? Phase 2 का आपका cutoff था 169, that is 170 जो हम बात कर रहे थे, right? So suppose a student gets, imagine 180 marks, just 10-20 marks more than the cutoff. 170 marks also if he gets, कंसिडर करते हैं 170 मार्क्स मिले, 170 प्लस इफ इन इंटरव्यू ही गेट्स 50 मार्क्स, देन ऑल्सो ही इज क्लियरिंग द कट ऑफ. इमेजिन दिस, 170 प्लस 50 अगर आप करोगे तो भी वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है. तो इस तरह से यू कुड सी आपका टोटल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. ओके, सो 50-60 मार्क्स भी, 50-60 भी मार्क्स अगर उसको मिल जाते हैं तो भी आरबीआई इंटरव्यू की मदद से ये लड़का क्या करेगा? ऑफ कोर्स आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएगा. सो व्हाट इट मींस इज दैट इंटरव्यू प्लेज अ मेजर रोल इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ फेज 2. इफ फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2024 अगर आपने फेज 2 दिया और आपका फेज 2 अच्छे से नहीं गया तो भी आप इंटरव्यू की मदद से आपका सिलेक्शन बना सकते हो इन द ईयर ऑफ 2024. आफ्टर द ईयर ऑफ 2021 इंटरव्यू इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल. इट्स ह्यूज मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स अगर आपको इंटरव्यू में मिल गए तो आपका सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा. एंड रिमेंबर वन थिंग, इन आरबीआई इंटरव्यू द मार्क्स आर वेरी वेरिएबल. कुछ कुछ बच्चों को 10 से 15 भी मार्क्स मिलते हैं और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को इवन 70 to 60 मार्क्स भी मिल जाते हैं. सो जस्ट इमेजिन
For some student in interview, they get 10 to 15 marks and some get 60, 70. So if even sometimes the God is not with you, if the lady luck is not with you, अगर आपका phase 2 बढ़िया से नहीं गया, then don't just forfeit your battle. Rather, work and study on your interview. It may be daily current affairs, reading newspapers daily, going through RBI website, self introspection. This will help you a lot, and overall this is what we expect, and this is how your selection would be determining on your phase 1, phase 2 and final selection analysis based on your cutoffs. So thank you very much and see you next time.